بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں ذوق احمد۔ میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں عروبہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے بعض اوقات لیڈرز اور جرنیلز کے لیے یو ٹرن ضروری ہوتا ہے، جو لیڈر خود کو عقل کل سمجھتا ہے ناکام ہوتا ہے۔ فوج سے کوئی لڑائی نہیں، اختلاف رائے دشمنی نہیں۔ اس سائفر پر سپریم کورٹ نے تحقیقات کی بجائے الٹا دھمکی دی۔ لیڈروں اور جرنیلوں کو یو ٹرن لینا چاہیے۔ کوئی لیڈر عقل کل نہیں جو ایسا سمجھے ناکام ہو جاتا ہے۔ عمران خان کا PFUJ کے زیر اہتمام آزادی اظہار پر سیمینار سے خطاب۔ بائی دا وے، جنرلز کے لیے، لیڈرز کے لیے یو ٹرن بہت ضروری ہوتی ہے۔ کوئی بھی لیڈر اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے۔ غلطیاں ہوتی ہیں لیڈر سے، بہتر یہ ہوتا ہے کہ غلطی پہچان کے، تو وہ کہتے ہیں when you are in a hole stop digging۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اب میرے سے غلطی ہوگی ہے تو اب واپس آ جائیں۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان کوئی بنانا ریپبلک نہیں جو دوسروں کی ڈکٹیشن پر چلے۔ کوئی دھمکی دے کر منتخب حکومت گرائے گا تو چپ کیسے رہیں؟ آج کل کے دور میں آواز دبانا مشکل ہے۔ سائفر پر سپریم کورٹ نے تحقیقات کے بجائے الٹا دھمکی دی۔ ایک باہر ایک انڈر سیکرٹری امریکن ایک پاکستانی ایمبیسڈر سے میٹنگ میں ایک کھلی دھمکی دیتا ہے۔ پریزیڈنٹ نے بھیجا CJ کو، وہ سائفر کے یہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ سائفر کو پوری کوشش کی کہ یہ کسی کو پتہ نہ چلے، اس کا ہر کوشش کی اس کو دبانے کی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ سری لنکا کے بعد پاکستان چوتھے نمبر پر ہے جو دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ کیا اسٹیبلشمنٹ کو نظر نہیں آ رہا کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ طاقتور فوج پاکستان کا بڑا اثاثہ ہے جس سے بچانا ہے۔ اختلاف رائے کا مطلب دشمنی نہیں ہوتا۔ فوج کو کبھی کمزور نہیں ہم افورڈ کر سکتے۔ ہمارے ارد گرد سارے مسلمان دنیا کی آپ کے سامنے اگزامپلز ہیں۔ ساری آپ سیریا لے لیں، یمن، سیریا، صومالیہ، افغانستان، ایک ایک لے کر سب کا جو حال ہوا ہے، جب کیونکہ وہ ڈیفینڈ نہیں اپنے آپ کو کر سکتے۔ پاکستان کے پاس بہت بڑا ایسٹ ہے، طاقتور فوج، اس کو ہمیں بچانا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ان کی ہدایت پر کسی صحافی کو نہیں اٹھایا گیا۔ میڈیا کو کبھی پیسہ کھلانے کی کوشش ہی نہیں کی، صرف فیک نیوز کے ساتھ مسئلہ تھا۔ نواز شریف عدلیہ اور میڈیا کو مینیج کر لیا کرتا تھا۔ سابق صدر آصف زرداری کہتے ہیں کاش عمران خان کو صحافیوں کے حقوق کا خیال اپنے دور میں بھی آ جاتا۔ عمران خان کا دور آزادی صحافت کے لحاظ سے سیاہ دور رہا۔ آصف زرداری نے سندھ کے وزراء سے ملاقات میں کہا سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات میں بہتری آئی ہے۔ عمران خان نے ملک کو بحران سے دوچار کیا، اتحادی حکومت اور اداروں نے مل کر بحران سے نکلنا ہے۔ عمران خان کی تقاریر سے ثابت ہو رہا ہے کہ ہار تسلیم کر چکے ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عمران خان نے ملک کو شری لنکا بنانے کی پوری کوشش کی۔ عمران خان ایک جھوٹا شخص ہے، میڈیا پر پابندیاں لگاتا رہا۔ عمران خان کے دور میں صحافیوں کو دھمکیاں دی گئیں۔ پنجاب میں ضمنی الیکشن ہے، مریم نواز نے بہترین انداز میں الیکشن مہم چلائی۔ تمہارے تو خمیر میں ہی الیکشن دھاندلی ہے، تم شناختی کارڈز کے ذریعے ووٹ خرید رہے ہو۔ موصوف کہہ رہے تھے کہ میرے دور میں میڈیا سب سے زیادہ آزاد تھا، میڈیا پر کوئی پابندی نہیں تھی، میں نے کسی قسم کی کوئی سینسرشپ نہیں کی ہوئی تھی۔ پولنگ سٹیشنز کے اوپر آج تم عملہ نہیں اٹھا سکتے، آج تم ڈبے نہیں اٹھا سکتے، تو تم وہاں فساد مچاؤ۔ تمہیں پہلے بھی وارننگ دے دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے احکامات کے مطابق جس نے الیکشن اور پولنگ سٹیشنز کے اوپر فساد اور جھگڑا اور غنڈہ گردی کرنے کی کوشش کی، قانون اپنا راستہ لے گا۔ تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل کے سربراہ وبانی ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی گلاسگو آمد۔ منہاج القرآن اسلامک سینٹر گلاسگو میں اسکاٹ لینڈ بھر سے آئے تحریکی ذمہ داروں، کارکنوں اور دیگر رفقا سے خصوصی ملاقات کی۔ قیصر حبیب کی رپورٹ۔ سربراہ تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل ڈاکٹر محمد طاہر القادری اسکاٹ لینڈ کے دورے پر پہنچ گئے۔ گلاسگو میں ان کے اعزاز میں خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں تحریک منہاج القرآن کے کارکن اور ذمہ داران نے بھرپور شرکت کی۔ ادارہ منہاج القرآن گلاسگو کی جانب سے ایک محفل کا اہتمام کیا گیا جس کا باقاعدہ آغاز حمد و ثنا سے ہوا۔ نقابت کے فرائض ڈاکٹر رفیق حبیب نے سر انجام دیے۔ منہاج القرآن اسلامک سینٹر گلاسگو میں اسکاٹ لینڈ بھر سے آئے تحریکی ذمہ داران، کارکنان اور
रफका से खुसूसी मुलाकात की। इस मौके पर चेयरपर्सन मुस्लिम काउंसिल ऑफ स्कॉटलैंड डॉक्टर मोहम्मद अदरीस भी मौजूद थे। डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के हमरा उनके बड़े साहबजादे डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन और पोते शेख हमाद मुस्तफा और अहमद मुस्तफा भी रौनक महफिल थे। तकरीब से खताब करते हुए शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने सूरह फातिहा के मफहूम और मकासद पर रोशनी डाली। फरमाया कि अपने अंदर की मैं मिटाकर दुख परेशानियों से दूर हो जाएंगे। बाद में डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू की। पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानियत का नाम रोशन करें, अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अमानत और दयानत के तरीक़ की ज़िंदगी बसर करें और हर शख्स अपने आप से निकल कर दूसरे की फ़िक्र करे, सोसाइटी की फ़िक्र करे, कम्युनिटी की फ़िक्र करे, मुआशरे की फ़िक्र करे। अगर हर शख्स दूसरे की खैर चाहेगा और अपनी हिर्स और लालच से निकल जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर इनाम करेंगे, जिससे हमारी मुश्किलात आसान होंगी, उम्मत मुस्लिमा की मुश्किलात आसान होंगी। पाकिस्तान सख्त मुश्किलात में घिरा हुआ है, हमारे तर्ज अमल से पाकिस्तान भी मुश्किल से निकलेगा। तो दियार गैर में जो नौजवान नस्ल है उनके लिए ज़रूरी है कि कभी भी अपनी आइडेंटिटी को फॉरगेट ना करें, अपनी आइडेंटिटी ना खो दें। उनकी पहचान असल में इस्लाम से है और अच्छा इंसान बनने से है। अगर वो अपने अंदर सही इंसानियत पैदा नहीं करते और इस्लाम की तालीमात पर अमल नहीं करते और अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं तो अपने आप को भी गंवाएंगे, दुनिया को भी और आखिरत को गंवाएंगे। गुनाहों की आलूदगी में और नाफरमानियों में और ऐशो आराम की ज़िंदगी में गुम होकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का बताया हुआ रास्ता न भूलें। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए शुरका ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी के बयान को पसंद करते हुए इस पर ज्यादा से ज्यादा अमल करने का आज़म जाहिर किया। उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की कि इंसान को सबसे पहले अपनी मैं ख़त्म करनी है और मिलजुल कर रहना है, तो इसका अजर दुनिया में नहीं हमें आखिरत में इंशाल्लाह मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका साया हमारे सर पर सलामत रखे। Mashallah, it was a very good turnout today. Alhamdulillah, the speech was very amazing, as always. Dr. Qadri Sahab was amazing. He said the speech he did was very nice, calmly, so the children could understand everything, and taught us a lot of things about ego and children how to obey their parents. अब हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी उन्होंने फरमाया हम उन पर अमल करें और अपनी जो दिलों की कदूरतें हैं उनको दूर करें और आपस में एक अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर करें और इस्लाम की जो तालीमात है उन पर अमल करते हुए एक अच्छे सिटीज़न बने। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को जो नसीहत अमेज़ पैगाम दिया है, इससे बढ़ के मेरा ख्याल है अगर कोई जी शौर आदमी है तो उसे इससे सबक हासिल करके यहाँ से जाना चाहिए और अपने दिलों को साफ़ करना चाहिए और अपने दिल की मैं को ख़त्म कर देना चाहिए। यही सबसे बड़ा उनका पैगाम है और अगर हम उनके सच्चे फॉलोअर हैं तो फिर हमें ये अडॉप्ट करना चाहिए। दावत दी और हमें जो गाइडेंस दी वो ये थी कि आपने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, आपने कम्युनिटी के बारे में सोचना है, दूसरों के बारे में सोचना है, ताकि आप मुआशरे को बेहतर से बेहतर कर सके। हमें चाहिए कि हम इनके पैगाम को जो मोहब्बत का है, शांति का है और बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक हम आहंगी का है, इसको लेकर आगे बढ़े। जो खूबसूरत नसाए डॉक्टर शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने दिए हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बात जो बड़ी खूबसूरत उन्होंने फरमाई कि सारा झगड़ा मैं का है, अगर ये मैं निकल जाए हमारे अंदर से तो यकीनन माशरे में अमन कायम हो जाएगा। हमें कलेक्टिव होकर सोचना पड़ेगा। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए कि इस अजीम कायद की निगरानी में इनकी लीडरशिप में हम उम्मत मुस्लिमा जो है वो अपना खोया वकार जो है उसको दोबारा उसको गेन कर लें। आखिर में पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में आज तहरीक मिनहाजुल कुरान के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने अपने रफ़का से मुलाकात की और मैसेज सिर्फ यही कन्वे किया कि अपनी अना को ख़त्म कर दें अगर आप दीन और दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं। कैसर हबीब, 92 न्यूज़, स्कॉटलैंड। लंदन के नवाही इलाके सलाह की सियासी और कारोबारी शख्सियत नवीद राना ने पाकिस्तान में सरमाकारी के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी की कारोबारी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान में रियल एस्टेट खासतौर पर गवादर में सरमाकारी के हवाले से मुफस्सल गुफ्तगू हुई। प्रोग्राम ने तकरीब की रौनक को भी दोबाला कर दिया। मजीद तफसीलात गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान में सरमाया कारी को फरोग देने के हवाले से मुनक्दा तकरीब में मियां मोहम्मद सलीम, राजा जाहिद, रूमी मलक, मुश्ताक लाशारी, हबीब जान, अमीर अबड़ू, फरिया कद्दूस, साबिक मेयर मुनीर अहमद, शराजा खान, वकास अहमद, अमानत अली अंजम समेत मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब की मेजबानी के फराइज सलाऊ की सियासी और कारोबारी शख्सियत नवीद राना ने सर अंजाम दिए, जबकि तकरीब का आगाज पाकिस्तान के कौमी तराने से हुआ। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि मुस्तकबिल करीब में गवादर पाकिस्तान की माशी तरक्की का मरकज होगा, जो बड़ी सतह पर एशियाई और मशरक़ वस्ता के ममालिक की सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मकाम बनता जा रहा है। राजा जाहिद का कहना था कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट के शोबे में तरक्की के बड़े मौके मौजूद हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपने बच्चों के खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मुकम्मल एतमाद के साथ महफूज सरमायाकारी करनी चाहिए। तकरीब के मेजबान राना नवीद का इस मौके पर कहना था कि सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए हुकूमत पाकिस्तान से अपील की है कि वह हुकूमती पॉलिसियों के तसलसल को यकीनी बनाए, ताकि सियासी तब्दीलियों के नतीजे में सरमायाकारों के नुकसान के अंदेशे को कम से कम किया जा सके। तकरीब में मुख्तलिफ मंसूबों के हवाले से डॉक्यूमेंट्री भी पेश की गई। आखिर में म्यूजिकल प्रोग्राम ने तकरीब की रौनक को दुबारा कर दिया। गुलकार मुबारक अली ने पुराने गीत गाकर शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए शुरका ने पाकिस्तान में रियल एस्टेट के शोबे में सरमायाकारी की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपने वतन अजीज में भरपूर सरमायाकारी करनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत है, यूके से ज़्यादा है। फिर वो आपकी अपनी नेशन है, आपका मदर लैंड है, तो उसके लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें अपनी मुल्क की खिदमत भी कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान हमारा अपना कंट्री है और अगर हम यहाँ ओवरसीज़ रहते हुए अगर हम अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली इससे पाकिस्तान में प्रोग्रेस, खुशहाली और जो डॉलर का प्रॉब्लम है वो भी किसी हद तक हल होगा। तो इस तरह हम ना सिर्फ कि पाकिस्तान की हेल्प कर रहे होंगे, बल्कि जब हम कभी बुढ़ापे में कहीं पाकिस्तान में जाते हैं तो हमारे पास अपनी एक रहाइश भी होगी। तो इस तरह के रहायशी मंसूबे जो हैं उनमें इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए। हमें अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसकी ये वजह है कि वहाँ पे हमारे बच्चे भी जाते हैं और वो हमारा मुल्क है और इससे वहाँ पे इकॉनमी हमारे मुल्क की बेहतर होगी, वहाँ पे रोज़गार मिलेगा लोगों को। तो इसलिए अगर अल्लाह ताला ने हम पे मेहरबानी की हुई है तो हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। ग्वादर जो है हम सब के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। जो भी प्रोजेक्ट ओवरसीज़ के हवाले से पाकिस्तान में होते हैं या ग्वादर में, तो हमें डेफिनेटली ओवरसीज़ को उसमें अपना इनिशिएटिव लेना चाहिए, उसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। पाकिस्तान को भी आगे लेके जाना है और जिस तरह बेशुमार प्रोजेक्ट लेकिन चल रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली हम तमाम ओवरसीज़ दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि जितने भी पाकिस्तान में स्पेशली खास करके हाउसिंग में प्रोजेक्ट हैं, डेफिनेटली वहाँ पे अच्छी नई सोसाइटी आ रही है, उसमें डेफिनेटली हिस्सा लेना चाहिए। पाकिस्तान में जो अपॉर्चुनिटीज़ की प्रॉफिट की जो शरह है वो सबसे ज़्यादा है। मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों को जो ओवरसीज़ रहते हैं उनको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट के बड़े चांसेस हैं, ताकि हम अपने दायरे गैर से साथ अटैच रहें, अपने बच्चों को अटैच रखें, अपनी नई जनरेशन को अटैच रखें, ताकि जो हमारे रूट्स हैं ना उससे हम कनेक्ट रहें किसी तरीके से। और यही एक वजह है कि अगर जब हमारा घर होगा, हमारी कुछ वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो हम उनके साथ बेटर वे से, अच्छे तरीके से साथ उनको अपनी जो उनकी कनेक्शंस हैं उनके साथ हम रख सकते हैं। और यही तरीका कार है। और पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी के जो बूम हो रही है वो एक इससे ज़्यादा कहीं और बूम के चांसेस नहीं है। If you invest in Pakistan, then when you go there, you can have a nice place to live, and you have a nice place to stay, and it will be your own property, and it will be no one else, and it will be fully secured. तकरीब में पाकिस्तानी कारोबारी अफराद के साथ साथ कम्युनिटी की दीगर नुमाया सियासी और समाजी शख्सियात ने भी भरपूर शिरकत की। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर के मशहूर कन्वेंशन सेंटर में इंटरनेशनल रिटेल फ्रेंचाइज MIRF की जानिब से 3 रोज़ा तिजारती मेला सजाया गया, जिसमें पाकिस्तान समेत जनूब मशरकी एशिया के 500 मारूफ ब्रांड्स की फ्रेंचाइजेज मुतारिफ कराई जा रही हैं। पाकिस्तान से पंजाब की सूबाई वजारत ज़राअत और पाकिस्तान हाई कमीशन मलेशिया के इश्तराक से दिलकश, दीदा ज़ेब और खूबसूरत पाकिस्तान पवेलियन सजाया गया है, जो मेहमानों की तवज्जो का मरकज बना रहा।
दिल फरेब तिजारती मेले का मजीद अहवाल जावेद रहमान की इस रिपोर्ट में। कुआलालंपुर के कन्वेंशन सेंटर में बैनुल-अक़वामी तिजारती मेला सज गया। 3 रोजा तिजारती मेले में मेजबान मुल्क मलेशिया समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, खास तौर पर जनूब मशरकी एशिया की 500 मारूफ ब्रांड्स की फ्रेंचाइजीज अपने प्रोडक्ट्स की नुमाइश कर रही हैं। पाकिस्तान से पंजाब की सूबाई वजारत ज़राअत और पाकिस्तानी हाई कमीशन मलेशिया के इश्तराक से दीदा से पाकिस्तानी पवेलियन सजाया गया है। बरनास मलेशिया के ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर दातो हारिस फजीला हसन ने पाकिस्तानी पवेलियन का बाकायदा इफ्तिताह किया और मलेशियन वजीर ज़राअत और प्लानिटेशन दातो जुबैदा ने पाकिस्तानी पवेलियन का रिबन काटा। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक और दोनों ममालिक के कौमी तरानों से हुआ। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल्फख्खार तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच ने कहा कि गुज़श्ता 3 सालों में मलेशिया और पाकिस्तान के तिजारती हुजम में गैर मामूली इजाफा दोनों ममालिक की दोस्ती और बाहमी एतमाद का मुंह बोलता सबूत है। मकसद हमारा ये था कि जो भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और हमारे उससे रिलेटेड इंडस्ट्री, तो उसको यहाँ पे हम शोकेस कर सकें और हम ये मलेशियंस को बता सकें कि चावल, आम, आलू और प्याज के अलावा भी बहुत सारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं जो कि मलेशियन मार्केट में पसंद की जाती हैं और यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जिनको। तो ये हमारे पाकिस्तानी बिजनेसमैन पाकिस्तान से आए हैं, उन्होंने स्टॉल्स लगाए हैं और सुबह से एक तांता बंधा हुआ है लोगों का जो कि इंटरेस्ट अपना शो कर रहे हैं और हैरानगी का इजहार भी कर रहे हैं कि इतनी वाइड रेंज है प्रोडक्ट्स की जो यहाँ पे डिस्प्ले हमने की है। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी बरनास मलेशिया के ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर दातो फजीला हसन ने पाकिस्तानी ज़राई मसनूआत खास तौर पर पाकिस्तानी चावलों के आला मयार की बेहद तारीफ की। landlocked countries. So I didn't go to Kazakhstan, and so I'm supposed to go, but now Pakistan is the base. I don't need to do that anymore because the railway tracks already prepared. मलेशियन वजीर बराए शजरकारी इंडस्ट्री दातो सिरी जुबैदा का 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानी ज़राई मसनूआत को मलेशिया और जनूब मशरकी एशिया की मंडियों में मजीद फरोग देने के लिए दोनों ममालिक के माबैन MOU साइन करने का इंदिया भी दिया। मलेशिया की मार्केट बहुत अच्छी मार्केट है, इसमें जो 4 कंट्रियों में पहले जाता है ना, उससे भी ज़्यादा जो है इधर सेल हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है और बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट चल रही है। हमने ये पहले तो सिर्फ आम शुरू किए थे, we just introduced the chonsa and anwar atar, but we get good response from Malaysian people actually, and now we want to introduce some more products like plums and apricot and peach also, and different types of mangoes also. पाकिस्तानी पवेलियन में फलों के बादशाह आम की मारूफ इकसाम चौंसा और अनवर रिटोल समेत पाकिस्तानी खुबानी, आलू बुखारा, आड़ू, अंगूर और मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां लोगों की खुसूसी तवज्जो का मरकज बनी रही। वलीराम ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शरणजी वलीराम, मलेशिया पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन दातो श्री नजीर मीरा सलाम, सूबाई वजारत ज़राअत पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी खालिद नईम, पाकिस्तान के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर काउंसलर शफकत अली खान न्याजी, पाकिस्तान एक्सपोर्टर्स और दीगर शख्सियात ने भी 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। There's a lot of opportunity, and looking at the products that you've displayed today at the Pakistan pavilion, there's a huge scope. I think all the products that you manufacture clearly is the best kept secret. And I was just saying before this that we will encourage all our members to look at your products and see what else we can import, because
because we consume the products that you either manufacture or grow in Pakistan. So the ability for the trade to grow is tremendous. Pakistan produce have tremendously improved a lot in quality, in packing, in the post-harvest treatment. I think it's very good, due to all the good job, and all the backdrop people that make the effort. So we find that the fresh produce is getting better and better over the years. Opportunities is that whatever Pakistan produce is being consumed in Malaysia. So the market is there. When you talk about mango, you talk about wheat and all the fresh product, it is actually being consumed in Malaysia. And I think this pavilion is a very good example to make first awareness about what kind of product is available, and also to have a business matching between the producers and also the buyers. And this is a good start to get to know what's available, and from there the commercial decision can be made. बड़े बायर्स हैं, बेसिकली हम उनको पाकिस्तानी लोगों से कनेक्ट करवा रहे हैं. जब इनके कनेक्शन बन जाता है तो बिज़नेस खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है. एक पाकिस्तानी जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनकी भी बड़ी कमाल है कि आपने देखा है कि यहाँ वो प्रोडक्ट्स जो नॉर्मली पाकिस्तान में भी नहीं होती यहाँ पे अब आना शुरू हो गई हैं. आपको यहाँ पे टिंडे, आलू बुखारा, कद्दू, नेम एनीथिंग, वो वहाँ तक आ गई है. इस मौका पर पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी का केक भी काटा गया. तकरीब में शरीक मेहमानों की तवाज़ो पाकिस्तानी आमों से तैयार करदा मिल्क शेक और मैंगो लस्सी से की गई. ये तिजारती मेला 16 जुलाई को इख्तिताम पजीर होगा. GMIRF मलेशिया में आज पाकिस्तान का खूबसूरत पवेलियन सजाया गया है. पाकिस्तान की मसनूआत, पाकिस्तान के फल, सब्जियाँ और हैंडी क्राफ्ट्स लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है. उम्मीद की जाती है कि आइंदा आने वाला वक्त पाकिस्तान और मलेशिया के मबाइन तिजारत के लिहाज से बहुत बेहतर होगा. कैमरा टीम के साथ जावेद रहमान, 92 न्यूज़, कोलालमपुर, मलेशिया. अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर ने अमेरिकी चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर एमिली ब्लाचर्ड के मुलाकात की है. मुलाकात में सफ़ीर पाकिस्तान ने आलमी मुआशरी रुझानात और खुराक और तेल के हवाले से पाए जाने वाली अदम तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बातचीत की है. डॉक्टर एमिली ब्लाचर्ड इंटरनेशनल इकनॉमिक पॉलिसी की माहिर हैं और वो अहम ओहदों पर रही हैं. वो डार्टमाउथ टक स्कूल ऑफ बिजनेस और सेंटर फॉर इकनॉमिक पॉलिसी रिसर्च में रिसर्च फेलो रही हैं. मुलाकात में दो तरफा अमूर पर बातचीत हुई. सफ़ीर पाकिस्तान मसूद खान और चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर एमिली की मुलाकात के हवाले से अमरीकी अंडर सेक्रेटरी जॉर्ज डब्ल्यू फ्रेंड्स ने ट्वीट करते हुए कहा कि उन्हें इस मुलाकात के बारे में जानकर खुशी हुई है, जिसमें आलमी मुआशरी चैलेंजेस और पाक अमेरिका मुआशरी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के हवाले से तबादला ख्याल हुआ है. तुर्की में यौम जमहूरियत और यकजहती मनाया गया. तुर्की के शहर गाजी अताब में भी इस हवाले से तकरीबात का एहतमाम किया गया, जिनमें तुर्क पार्लियामेंटेरियन चेयरमैन पाक तुर्क दोस्ती अली शाहीन ने भी शिरकत की. इस मौके पर उन्होंने जमहूरियत की बका के लिए शहीद होने वाले शहरियों को खिराज अकीदत पेश किया. मजीद अहवाल आतिफ भट्ट की इस रिपोर्ट में. तुर्की में 16 जुलाई को यौम जमहूरियत मनाया जाता है. इस हवाले से तुर्की के शहर गाजी अंताब में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें तुर्क पार्लियामेंटेरियन और चेयरमैन पाक तुर्क दोस्ती अली शाहीन ने खसूसी शिरकत की. तकरीब से खिताब करते हुए अली शाहीन ने अपने मुल्क की खातिर शहीद होने वालों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और उन्हें खराज अकीदत पेश किया. अली शाहीन का कहना था कि 16 जुलाई का दिन नाकाम बगावत की कोशिश की रात के तौर पर मनाया जाता है, जब तुर्क कौम ने तारीखी मुज़ाहमत की और मुल्क की आज़ादी और जमहूरियत की शमा रोशन करके एक मिसाल कायम की. उनका कहना था कि बगावत की रात सड़कों, पुलों, चौराहों, शहरों और पब्लिक मकामात और तुर्की की कौमी असम्बली पर F-16 तैयारों की बमबारी एक अफसोसनाक अमल था. 16 जुलाई को तुर्क सदर की अपील पर उस दिन तुर्क अवाम सड़कों पर निकल आए और फौजी बगावत को नाकाम बनाने में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया. इस अजीम शान मुज़ाहमत के दौरान तुर्की के 251 शहरी अपने जानों से हाथ धो बैठे. तुर्की में फौजी बगावत की 6ठी बरसी के मौके पर शहदा को याद किया जाता है और उनको खराज तहसीन पेश किया जाता है. आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, तुर्की.